So, guys, today we will discuss Lalita Kumari versus Government of UP, Honorable Supreme Court Constitutional Bench Judgment relating to Section 154. So, first मैंने 154 सेक्शन आपके स्क्रीन पे दिया है. So, first to understand and then we will come to the case. In our last class also we discussed this particular section thoroughly. Section 154 subsection 1 is basically related to registration of FIR. It says that every information relating to the commission of cognizable offense, that means it is clear that information on which FIR will be registered must be related to the commission of cognizable offense की offense जो है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि आपके फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल दिखाया गया है वो कमिट हो गया है. इफ गिवन orally, सो दिस इंफॉर्मेशन मे बी गिवन orally है तो क्या है और अगर रिटर्न में है तो क्या है. इफ गिवन orally to the officer in charge of police station shall reduce be in writing by him. Now what is the meaning of shall reduce? That mean it is mandatory. It is the general rule that as such, if it is the word shall use is that mean it is mandatory. ठीक है. Someone has written that good evening sir, it's the sound okay, rejoining as no sound. आप लोगों को साउंड अच्छा किसी को नहीं आया होगा. ओके, नो इश्यू. ठीक है. दैट मीन रजिस्टरिंग द FIR is mandatory as per section 154. ठीक है. And the officer in charge of the police station, he is duty bound to register the FIR by him personally or to any person under his direction, जो भी अदर पुलिस ऑफिसर होता है. बट अगर FIR रजिस्टर नहीं होती है, इन दैट सिचुएशन देयर इज सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 that the substance of that information shall reduce in writing and will be sent to the post to the superintendent of the police. And superintendent of the police shall investigate him personally or to designate any junior officer, because superintendent of the police is the senior officer than the officer in charge of the police station. And section 36 of the CRP says that senior police officer, other than senior police officer, above than the officer in charge of police station, officer in charge of police station means station house officer, will have the same jurisdiction throughout that territory. And so that SP may make investigation. That mean legislature को पता था कि हो सकता है किसी सिचुएशन में FIR ना हो. 154 it is very clear, कोई ambiguity नहीं है. But still there are so many instances that FIR पुलिस ने रजिस्टर नहीं की. And there may be multiple reason for non registration of FIR. हो सकता है पुलिस ने FIR रजिस्टर इसलिए नहीं की बिकॉज पुलिस को लगता है कि ज़्यादा FIR रजिस्टर कर रहे हूँ, उन पे प्रेशर रहता है कि भाई हम अगर FIR रजिस्टर करेंगे बाद में सारा मामला हमें ही करना पड़ेगा, या उस पे पॉलिटिकल प्रेशर है कि इस केस में FIR रजिस्टर ना हो, या हो सकता है अक्यूज़ ने उनको पैसा दिया है कि FIR रजिस्ट्री ना होने दो, दबंग टाइप का कोई आदमी है, और देयर मे बी एनी अदर रीजन. लेकिन अगर पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती है तो क्या करें, वो हमने 154 में पढ़ा. उसके अलावा हमने वो भी पढ़ना है कि सेक्शन 190 में जो कॉग्निजेंस ले सकता है, दैट पर्सन, दैट मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट अंडर सेक्शन 156 3. लेकिन अभी हम वहाँ प्रोविजन पे जा नहीं रहे, और डायरेक्ट कॉग्निजेंस भी ले सकता है मजिस्ट्रेट. एंड 166 कैपिटल ए स्मॉल सी ऑफ IPC सेक्सुअल ऑफेंसेस में नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज ए offense from whose punishment is from 6 months to 2 years. लेकिन क्या जो FIR है, is that mandatory to register or is it not mandatory to register? And this question arose. A minor girl was kidnapped. A minor girl was kidnapped and the parents went to the police station. Police has not lodged the FIR.
Okay, with that, the police officer has not registered, the parents were aggrieved, and so they have filed the writ petition of habeas corpus under article 32 of the constitution. habeas corpus के अंदर रिट पिटीशन फाइल किया दैट जो 5 तरह की रिट पिटीशन होती हैं, habeas corpus दैट ब्रिंग द बॉडी, ठीक है, कॉर्पस मीन बॉडी, ब्रिंग द बॉडी, इफ एनी पर्सन इलीगली डिटेन है, चाहे वो किसी भी आदमी के द्वारा, अगर सपोज लॉ के वायोलेशन में कोई पुलिस ऑफिसर भी आपको डिटेन करता है तो यू कैन फाइल द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। अगर मैजिस्ट्रेट भी अथोराइज कर देता है इन वायोलेशन ऑफ लॉ, देन अगेन द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी इशू। सो इस तरह से इसमें रिट इश्यू होती है। फाइनली जो है, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, बिकॉज अर्लियर देर इज लाइक जो है देर इज डिफिकल्टी, बिकॉज सम हाई कोर्ट सम जजमेंट में ये था कि ये कर सकता है, और सब में था कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो एफआईआर रजिस्टर करेगा। So what will be the procedure? Can the police officer before registration of FIR can do preliminary inquiry, or he has to directly register the FIR? And so for that we have provided you the case in your case material. Now I'm sharing that case. You have different judgments related to this particular case. Uh, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तीसरा जो ऑर्डर है। एंड यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फर्स्ट इज टू डिस्कस दैट व्हाई वी डिस्कस केसेस, एंड सेकंड इज हाउ टू डिस्कस द केसेस, हाउ टू रीड द केसेस। Why we discuss the cases? The answer is very simple, because cases also make the source of law as a precedent. The law declared by the Supreme Court is the law of land under Article 142. And the law decided by High Court also having the importance because it clarify that position and also the source of law. And so we discuss the judgment. Then the second question कि कैसे पढ़ें किसी केस को। देखिए, पहला तो केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पार्टीज का नाम। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ललिता कुमारी, दैट मीन वन पार्टी, देन गवर्नमेंट ऑफ यूपी, अनदर पार्टी। वी हैव एडवर्शियल सिस्टम, सो हमारे यहाँ पे दो पार्टियां हर केस में होती हैं, एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे जो है आपका रिपो जो है एडवाइजरी ओपिनियन मानी जाती है। जब एडवाइजरी ओपिनियन होती है जहाँ पे, तो उसमें इन रे बोलते हैं, INRE, इन रे। अदरवाइज दो पार्टी होती है, दो पार्टीज के नाम जिस फोरम पे, अगर फर्स्ट फोरम है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, सो जो एग्रीव्ड है वो अप्रोच करेगा टू गेट द जस्टिस। And as per our section 101 of Indian Evidence Act, that person who want the judgment in his favor, who goes to the court, has the burden of proof. So he will be first party, and against whom he want the judgment is the second party. अगर अपील में जाता है तो उसके बाद में जजमेंट जिसके फेवर में होगा वो तो अपील में नहीं जाएगा, जजमेंट जिसके अगेंस्ट होगा वो अग्रीव्ड है तो वो अपील में जाएगा, तो वो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, और ये टर्मिनोलॉजी चेंज होती रहती है। सो जो पार्टी है उस पर्टिकुलर फोरम पे आप बता सकते हो, लाइक इस फोरम पे सुप्रीम कोर्ट में आपका जो है 32 में, आर्टिकल 32 में ललिता कुमारी जो है वो गई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो है वो गई है, ठीक है। उसके नीचे आपका जजमेंट का जो ये डेट वगैरह लिखी होती हैं। अब देखिए, बिकॉज दिस जजमेंट हैज द प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट्स, तो प्रेसिडेंट्स की वैल्यू होती है, सो ऐसे में जजमेंट रिकॉर्ड होते हैं,
और ये प्राइवेट जर्नल होते हैं, जैसे हमारे न्यूज़पेपर या जो जर्नल मैगजीन होते हैं, ऐसे ये जर्नल होते हैं। जैसे स्केल है, एससीसी है, आपका एआईआर है, आपका क्रिमिनल लॉ जर्नल है, डिफरेंट लॉ जर्नल है, प्राइवेट लॉ जर्नल है। सब उस केस को रिपोर्ट करते हैं, एंड रिपोर्ट करने के बाद में जो है उस जजमेंट में उस पर्टिकुलर पेज जहाँ पे वो जजमेंट रिकॉर्ड है, पर्टिकुलर ईयर का पब्लिकेशन, वो लिखा जाता है। ठीक है? ये सारे प्राइवेट जर्नल होते हैं, केवल एक ही जो है सरकारी जर्नल है जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री इशू करती है, एससीआर, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे इसमें 2013, यानी ये स्केल जजमेंट का 2013 का था, उसकी 13वीं वॉल्यूम थी, और पेज नंबर 559 पे आपको ये जजमेंट मिल जाएगा। हो सकता है सेम जजमेंट किसी और जर्नल में रिपोर्टेड हो, तो उसकी भी चीज़ें आप ढूंढ लेते हो। इसको हम बोलते हैं साइटेशन, जहाँ पे ये ईयर, वॉल्यूम, जर्नल का नाम और पेज नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं साइटेशन ऑफ द केस। फर्स्ट जो हमने ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो हमने पढ़ा, दैट इज द पार्टीज नेम। देन सेकंड कॉलम है आपका साइटेशन ऑफ द जजमेंट। ठीक है? देन यहाँ पे जो भी आपका जज है जिसने ये जजमेंट लिखा, उसका नाम होता है। ठीक है? अब जजमेंट के अंदर पांच चीजें होती हैं। पांच चीजें। फर्स्ट होता है फैक्ट्स ऑफ द केस। चाहे जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में डिसाइड, सपोज दो पार्टी हैं ए वर्सेस बी, तो ए के फेवर में डिसाइड किया। अपील में हो सकता है द केस विल बी डिसाइडेड इन बी फेवर। अगेन सेकंड अपील में हो सकता है कि दोबारा ए के फेवर में हो, लेकिन फैक्ट्स रिमेन अनचेंज। एंड फैक्ट्स का मतलब होता है ऑल दोज फैक्ट्स दैट आर रिलेवेंट फॉर द डिसीजन ऑफ द केस। अब फैक्ट्स में अगर अक्यूज है जिसकी एज मायने रखती है, तो उसका एज भी वेल रिलेवेंट फैक्ट है। अक्यूज के कपड़े अगर उस जजमेंट की कुछ बेयरिंग रखते हैं, तो उसका भी वो फैक्ट हो गया, अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। सेकंड होता है केस हिस्ट्री, हाउ दिस केस रीच टू द फोरम। जिस फोरम का जजमेंट है, हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक ये केस कैसे पहुंचा। बिकॉज हमने पहले भी क्लासेस में कहा कि सेक्शन 26 ऑफ सीआरपीसी में ये है कि जुरिडिक्शन किसका है, ट्रायबिलिटी है। ठीक है? नॉर्मली जो है वो आपका सेशन जज तक की आप ट्रायल देखते हैं। ठीक है? फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, सीजेएम वगैरह ट्रायल करते हैं। तो हाई कोर्ट केस अपील में पहुंचा, या फिर ट्रांसफर ऑफ अपील के थ्रू पहुंचा, या सुप्रीम कोर्ट जो हमारे पास लिमिटेड आर्टिकल है 134 एटसेट्रा, या रिट पिटीशन के थ्रू पहुंचा, या 143 के थ्रू पहुंचा, या 136 स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू पहुंचा, किस पिटीशन के थ्रू ये जो है जो पर्टिकुलर पार्टी वहां तक पहुंची। सो दैट इज केस हिस्ट्री। थर्ड इज द इशू, दैट व्हाट इज द मेन इशू इन द जजमेंट। इशू क्या है? इशू और इश्यूज बिकॉज लॉ पॉइंट पे ही होता है, और एक लॉ पॉइंट के ऊपर सारा केस डिपेंड होता है। ये एक हिंज होती है जिसपे पूरा केस लटक रहा है। फोर्थ इज द आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, whether you are satisfied with the arguments or not satisfied with the argument, both the party will hear the argument, and in little you also have to write that. The fifth one is the decision. Decision does not means yes or no. Appeal is allowed or appeal is rejected, or conviction or acquittal. That is not the decision. Decision means the reason behind the decision. Why you reach, why you want, why you have convicted the person, why you have acquitted the person, why you said that this issue is decided in this manner, whether this law point is this, whether this provision has this meaning or other meaning. So उसके पीछे का रीजनिंग जो है, that is decision. So ये पांच चीजें, facts, case history, then issue, then arguments, and fourth is the decision. These are very important. First, I'm taking the facts of this case. And the facts of this case, I have simply told you that there was a minor girl, Lalita Kumari, who was kidnapped.
who was kidnapped, and his parents want to write FIR. Police has not written the FIR. Then there was the intervention of superintendent of the police. Then the FIR was written, but it was not investigated. The जो आईओ था वो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ। पहले के दो ऑर्डर आप पढ़ लोगे, उसमें ये सारी डायरेक्शंस हैं। एंड उसके बाद में जो है वो फादर जो है ही मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट द मैटर हैज टू बी डिसाइडेड, ठीक है। नाउ सी, ये सारे फैक्ट्स आपको पैरा नंबर 2 के अंदर यहाँ पे मिल जाएंगी, जो मैंने आपको अभी तक जो है बताए। यहाँ से आप कर लो, वन ललिता कुमारी, ठीक है, क्लियर। Then come to the second point. These are the facts. Second point is that what is the case history? How this case reached to the Supreme Court? And the case history is again present in the second para. It's very clear that the present writ petition was under Article 32. So this was through the Supreme Court को कैसे approach हुआ case? Through the writ petition under Article 32 of the Constitution. Clear. Now come to the third point. The third point is what is the issue. Issue is in the first para. The issue is the important issue which arises for consideration is referred in the matter whether a police officer is bound to register the FIR upon receiving any information relating to the commission of cognizable offence under section 154 of the Code of Criminal Procedure. In short, code, or the police officer has the power to conduct the preliminary inquiry in order to test the veracity of information before registering the same. वेरी क्लियर कि जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दिया है, तो क्या पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही एफआईआर लिखेगा, या वो कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है कि ये जो बोल रहे हैं ये सच्चाई है या नहीं। सेक्शन 154 क्लियरली ये कहता है that every information relating to the commission of cognizable offense, देर इज नो वेयर मेंशन कि उसकी वेरासिटी चेक होगी या नहीं होगी, ऐसा नहीं, ठीक है। एंड बिकॉज बिफोर ललिता कुमारी देर आर कंफ्लिक्टिंग जजमेंट, सम जजमेंट से दैट हाँ कुछ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, कुछ में था कि नहीं भाई एफआईआर तो मैंडेटरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो है सारे उनको जजमेंट के पीछे के जजमेंट को भी देखा गया, एंड इट वाज discussed at the detail that what is the true position or true scope of the section 154 subsection 1 of the CRPC, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको जो है पहले आप पढ़िए पैरा नंबर, just give me 1 minute, पैरा नंबर 1 sorry yeah 22, पैरा नंबर 22, ठीक है। पैरा नंबर 22, पैरा नंबर 22 में है जो कि पैरा नंबर 6 में क्वेटेड है। पैरा नंबर 6 में नीचे जाइए, मैं शेयर कर रहा हूँ, उसमें दिखेगा आपको ये वाला, ठीक है। The only issue before the Constitution bench is interpretation of Article Section 154 और 157, कि 154 एंड 157 का इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चन यहाँ पे बच जाता है, वो हमें करना है। पैरा नंबर 22 that in the issue before the Constitution bench of this court arising two main conflicting area. First is whether the immediate non-registration of FIR lead to scope of manipulation by the police,
which affect the right of the victim or complainant to have complaint immediately investigated upon allegation being made. दैट वन पॉइंट कि अगर आप तुरंत उसको रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करते हो और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात करते हो, तो ऐसे में विक्टिम के साथ जो है उसका राइट अफेक्ट होगा, बिकॉज इट लीड्स टू द मैनिपुलेशन बाय द पुलिस। सेकंड है कि क्या इन केसेस वेयर कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन जो क्लियरली डिस्क्लोज नहीं करता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, but FIR is compulsory registered, then it infringe the right of the accused. Suppose a person went to the police station, injured है, but clearly नहीं है कि simple hurt है या grievous hurt है। grievous hurt जो सेक्शन 320 आईपीसी में है, अब सेक्शन 320 में जो डिस्क्रिप्शन है 6-7 तरह का, उसके अकॉर्डिंग सपोज करो वो उसका पता नहीं चल पा रहा, खून तो थोड़ा आ रहा है लेकिन ये नहीं है कि डिसलोकेशन ऑफ बोन है, फ्रैक्चर ऑफ बोन है, या जो है परमानेंट उसकी आंख चली गई है या हियरिंग कैपेसिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में या इमेस्कुलेशन है, ये कहता है कि भाई अगर आपके सीन से जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जी आया उन्होंने बहुत पीटा लकड़ियों से, अब इस इंफॉर्मेशन से पता नहीं चल पा रहा है कि ऑफेंस जो है वो आपका हर्ट में आएगा या ग्रीवियस हर्ट में आएगा। सो ऐसी सिचुएशन में क्या कंपलसरी एफआईआर करने से अक्यूज के राइट तो नहीं इन्फ्रिंज हो जाएंगे, बिकॉज क्रिमिनल जो प्रोसीजर है इट हैविंग बोथ प्रोटेक्शन ऑफ, यू कैन से, फेयर ट्रायल भी करना है, विक्टिम को जस्टिस भी देना है, एंड अक्यूज के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। सो यहाँ पे सारा क्वेश्चन ये दो कंट्रोवर्सी के कारण है, एंड द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि वी हैव टू इंटरप्रेट सेक्शन 154 एंड 157। आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्लास आल्सो कि 154 में एफआईआर, उसके बाद में 156(1) में इन्वेस्टिगेशन की पावर आज हो जाती है पुलिस ऑफिसर के पास में, बट इन्वेस्टिगेशन विल बी डन बाय द पुलिस ऑफिसर दैट हैविंग द जुरिडिक्शन। 157 में सपोज एफआईआर नहीं लॉज ही, कोई क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है टेलीफोनिक वगैरह, ऐसी सिचुएशन में 157 में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 154 और 157 को सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया और उसको समझने की कोशिश की है, दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू दैट। पैरा नंबर 86 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। द अंडरपाइनिंग ऑफ कंपल्सरी registration of FIR is not only to ensure transparency in criminal justice। एक आर्गुमेंट दिया गया कि एफआईआर प्रॉपर लॉज होने से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है, एंड आल्सो इंश्योर द जुडिशियल ओवरसाइट, बिकॉज अभी आपको नहीं लिख रहा, बाद में आपको पता चलेगा नेक्स्ट क्लास में कि एफआईआर लॉज होने के बाद में सेक्शन 157 में अकरेंस रिपोर्ट भेजनी पड़ती है टू द मजिस्ट्रेट दैट हैज द जुडिक्शन। सो मैजिस्ट्रेट को हो गया कि ऐसा एफआईआर हुआ, ऐसा चल रहा है, सो ही हैज द ओवरसाइट, सो इट आल्सो इंश्योर जुडिशियल ओवरसाइट। सेक्शन 157(1) डिप्लॉय द वर्ड फोर्थ विद, दैट फोर्थ विद, सेक्शन 157 में कहता है कि इंफॉर्मेशन के बाद में फोर्थ विद, जो एफआईआर और इंफॉर्मेशन हुई है उसके बाद में फोर्थ विद ए रिपोर्ट विल बी सेंट बाय पुलिस ऑफिसर। इस रिपोर्ट को 157 की रिपोर्ट को हम कहते हैं अक्रेंस रिपोर्ट, ऑकरेंस रिपोर्ट, OCCURANC। सो अकरेंस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, सो द मैजिस्ट्रेट हैव द ओवरसाइट। Thus, for any information received under section 154 or otherwise has to be duly informed in form of the report, यही section 157 की लैंग्वेज है, to the magistrate। Thus, the commission of cognizable offence is not only brought to the knowledge of investigating agency but also to the judiciary, subordinate judiciary। ठीक है। द कोड कंटेम्पलेट टू काइंड ऑफ एफआईआर।
वन इज द ड्यूली साइंड एफआईआर, जो हमने पढ़ाया बताया कि एफआईआर, एफआईआर जो कि आपने ओरली दिया, उसको रिड्यूस इन राइटिंग जो है वो दिया गया, एंड रिड्यूस इन राइटिंग देके आपने उसको रेड ओवर करके भी दिया, सो टू इंश्योर दैट इट इज इन वर्बेटम। ये जो एफआईआर है उसमें का इट हैज टू बी साइंड बाय द इंफॉर्मेंट, एंड अगर इंफॉर्मेंट साइन नहीं करता है तो देर इज सेक्शन 180 आईपीसी कम इनटू ऑपरेशन, उसका पनिशेबल हो जाता है। सेकंड है by the informant to the concerned police station. Second kind of FIR could which is registered by the police itself upon the information received or other than by way of information। क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन हो गई, क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन पुलिस ने किया कि मुखर्जी नगर में ऐसे हो गया। अब इस इन्फॉर्मेशन में कोई डिटेल है नहीं इन्फॉर्मेंट, तो ये इस पे एफआईआर नहीं होगी। सो 157 में अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस वहां गई और उसके ऊपर एफआईआर जो है रजिस्टर हुआ, and even in this information has to be duly recorded and then the copy is sent to the magistrate forthwith। दोनों ही सिचुएशन में ऑकरेंस रिपोर्ट 157 में मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है। So 154 and 157 make it the the whole process that after registration of FIR or after getting any information related to cognizable offense, the police officer will send the occurrence report। So investigating agency के पास ही केस नहीं, जुडिशरी का भी उस पे ओवरसाइट हुआ कि भाई हाँ चल क्या रहा है इस केस पे, ठीक है। Come to the next para. Registration of FIR is neither on basis of information furnished by the informant under section 154(1) of the code or otherwise under section 154(7) is obligatory। The obligation to register FIR has inherent advantage। अब इसके advantage क्या है? It is the first step to access the justice for a victim। It upholds the rule of law in as much ordinary person bring forth the commission of cognizable offense, crime in the knowledge of the state। It also facilitates swift तेजी से investigation, because जितना जल्दी एफआईआर होगा उतना जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगा। जैसे मर्डर हुआ, उसके बाद में एफआईआर लॉज हुई, तुरंत पुलिस जाएगी, पुलिस 157 में उस प्लेस के ऊपर जो स्पॉट पे जाएगी उसको कॉर्डन करेगी स्पॉट को, ठीक है, वो टेप वगैरह लगा के क्राइम सीन डोंट गो अहेड ऑफ दिस। फिर जो है कलेक्शन करेगी, ऑल पर्सन्स हु आर एक्वेंटेड विद फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस उनको एग्जामिन करेगी। सस्पेक्ट अगर है तो उससे इंटेरोगेशन करेगी। कन्फेशन अगर सस्पेक्ट बनाना चाहता है तो 164 में कन्फेशन उसकी लेगी, और फिर फाइनली पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगी। इट आल्सो फैसिलिटेट स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन, समटाइम इवन प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम। हो सकता है कि क्राइम सीन पे हो गए, अक्यूज किसी दूसरे को भी मारना चाहता है तो वो भी प्रिवेंट हो सकता है। It lead to the manipulation of the criminal case and also lessen the incident of antedate। antedate मतलब बाद के डेट की, ठीक है ना। जैसे आज क्राइम हो गया, बाद में जो है ना वो एफआईआर हो रहा है एंटीडेट और डेलिबरेटली डिलेइंग एफआईआर, बिकॉज एफआईआर लॉन्च करवाना सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में सब्सिक्वेंट कंडक्ट है विक्टिम का, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस दैट आर गिवन कि एफआईआर क्यों जरूरी है, ठीक है। और इसलिए जो दो क्वेश्चन पूछे पैरा नंबर 22 में कि एक तरफ विक्टिम का राइट है दूसरी तरफ अक्यूज का राइट है, इन रीजंस के साथ विक्टिम की तरफ जो है ये टिल्ट होता हुआ ज्यादा तो दिखाई देता है। और इसमें कहता है हेलो भाई साहब, मिल के होंगे पैसे? नंबर 93 में, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। हैं? देखो चेक करो। विजय, 15 20 मिनट विजय प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ओके। यस सर। विजय, स्विच ऑफ योर माइक।
ठीक है। हाँ, अब सब अपना माइक बंद करिए प्लीज। अबे चल रहा है। फोन कर मिस्टर दिया। मिस्टर एम यू, ठीक है। देन आपका है ऑल दीज थिंग्स we discuss. After that, come to the reasoning that you can read in the Malimat committee, what it has been had by जस्टिस वी एस मलिमत। इसने 154 को जो है ऑब्जर्व किया पैरा नंबर 93 में, और उन्होंने कहा हुआ है कि इमेज ऑफ पुलिस किस तरह से है, पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर करती है, और इट्स वेरी अर्जेंट, इट्स वेरी नेसेसरी। एंड पीछे हमने पैरा नंबर 88 और 87 में हमने पढ़ ही लिया कि एफआईआर जो है इट्स वेरी नेसेसरी बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर रूल ऑफ लॉ। अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर shows the post subsequent conduct. It also prevent the manipulation by the police and other person, and so it must be registered. दैट मीन्स सेक्शन 154 एंड 157 के स्कोप से एफआईआर मैंडेटरी है। पर्पज से भी इसका ये लगता है कि इट मस्ट बी। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कुछ ऐसी केसेस जहां पे ये नहीं हो कि एक्चुअल में ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल हुआ है कि नहीं, उस केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है, बाकी मैंडेटरी। अब इस चीज को कैसे इन्फोर्स किया जाए, सो द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड द डायरेक्शन। 154 में डिसाइड तो किया ये मैंडेटरी है, बट द डायरेक्शन वर इशूड, एंड दीज डायरेक्शन वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज डायरेक्शन फ्रेम द part of the law of the land. These direction are there, and then there are some exception। एक्सेप्शन के लिए आपको पढ़ना है पैरा नंबर 106। Although we in unequivocal term hold that 154 code of the code यानी CRPC postulate the mandatory registration of receipt of all cognizable offense, yet there may be instance where preliminary inquiry may be required owing to the change or in genesis and novelty of the crime with passage of time। ठीक है, क्या कि कुछ टाइम के साथ कुछ ऐसे ऑफेंस हो गए हैं जिसमें बड़ा डिफिकल्ट होता है। वन इंस्टांस इज एलिगेशन ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। अब कोई आरएमपी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और उसके अगेंस्ट एलिगेशन है, सो ऐसी सिचुएशन में रूल ऑफ लॉ यही है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ जो केस रजिस्टर होता है तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि सही में वो है। तो ऐसी सिचुएशन में court is observing that it is unfair and unequivocal to prosecute a medical professional only on the basis of allegation of the complaint। तो ऐसी केसेस में मे बी द पुलिस ऑफिसर कैन मेक द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल्ड इश्यू की गई है डायरेक्शन, यहाँ पैरा नंबर 111 में the direction, and these direction are whatever we have discussed earlier, उसी का क्रक्स है एक हिसाब से। ठीक है। come to the direction that in view of aforesaid discussion we hold first registration of FIR is mandatory। so जो भी कोई क्वेश्चन पूछे, अगर आपकी FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है और पुलिस ऑफिसर बना करता है, आप कहो कि ललिता कुमारी में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, FIR इज मैंडेटरी। ठीक है। अनलेस आपका केस उन एक्सेप्शन में फॉल ना हो रहा, वो अभी हम पढ़ेंगे कौन से एक्सेप्शन है। ठीक है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो फिर नहीं है, बिकॉज सेक्शन 154 बिल्कुल क्लियर है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है। एंड नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज परमिसिबल। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी परमिसिबल नहीं है। इस कोर्ट का जजमेंट अगर नहीं मानोगे तो पहली बात तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएगा। ठीक है। ठीक। सेकंड, बिकॉज इट इज लॉ ऑफ लैंड, इफ द इंफॉर्मेशन रिसीव डज नॉट डिस्क्लोज कॉग्निजेबल ऑफेंस। सपोज आप कैसे इंश्योर करोगे कि जी
पुलिस वाले ने जी मैंने तो इसलिए रजिस्टर नहीं की एफआईआर बिकॉज कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था। सो द सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म डिवाइस की कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, उस इंफॉर्मेशन को पहले जो है आप क्या करोगे कि उसको रजिस्टर करोगे। ठीक है जी, डायरी में रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद में चाहे आपने रिजेक्ट की तब भी आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, if the information does not disclose cognizable offense but indicate the necessity of an inquiry, the preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether the offense is disclosed or not. सपोज किसी की मारपीट हुई, उसमें आपको लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बिकॉज फ्रैक्चर क्लियर नहीं है, तो उसमें आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो। आपने उसका मेडिकल करवाया, मेडिकल करवाने पे पता चला कि एफ जो है इसमें ग्रीवियस हर्ट है, सो ये कॉग्निजेबल हो गया, देन यू हैव टू रजिस्टर द एफआईआर। ठीक है। Third, if inquiry disclose commission of cognizable offence, the FIR must be registered. In case where preliminary require and in closing the complaint, a copy of entry of such closure must be supplied to the first informant forthwith not later than 1 week. लेकिन अगर उस इंक्वायरी के बाद में कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो उसकी कॉपी आप सप्लाई कर दो। It must disclose reason for brief for closing the complaint and not proceeding further within 1 week. The police officer cannot avoid his duty of registering offense if cognizable offense is disclosed. पुलिस ऑफिसर इस ड्यूटी को अवॉइड नहीं कर सकता, और अगर वो करता है तो एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट एरिंग ऑफिसर हु डू नॉट रजिस्टर द एफआईआर इफ इंफॉर्मेशन रिसीव बाय हिम डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इसी के साथ 166 कैपिटल ए क्लोज सी ऑफ आईपीसी पढ़ लो। अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस है वुमेन के खिलाफ, एसिड अटैक वगैरह, असोल्ट, रेप, तो ऐसे में नहीं करता है तो पुलिस ऑफिसर को पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। ही विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट 6 मंथ टू 2 ईयर। देन द फिफ्थ, द स्कोप ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अगर पुलिस को लगता है कि जो इंफॉर्मेशन आई है इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है जी, सो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का क्या पर्पज है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का पर्पज है टू फाइंड आउट वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और नॉट। बिकॉज सेक्शन 154 क्लियर है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको पता चल गया कि कमिट हुआ है तो आपको एफआईआर करनी ही करनी है, इट इज मैंडेटरी। लेकिन अगर उसमें क्लियरिटी नहीं है तब आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करोगे। उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का केवल ये स्कोप है, उसमें आपको और एविडेंसेस नहीं देखने हैं, कि आपको देखना है कि जो ऑफेंस हुआ है ये किस नेचर का है, अक्यूज ने किया नहीं किया, किस अक्यूज ने किया वो नहीं, आपने ऑफेंस उसका जो रिजल्ट है। ठीक है। द स्कोप ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट टू वेरीफाई द वेरासिटी, सच्चाई जानना नहीं, और अदरवाइज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव, बट परंतु केवल असर्टेन वेदर इंफॉर्मेशन रिवील एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, की ऑफेंस जो है जो इसमें हो रहा है क्या वो कॉग्निजेबल का है या नहीं। नेक्स्ट, ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कौन से केसेस में? अब देखो, जनरल रूल है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वो ऐसा फैक्ट जो आपके पास डिस्क्लोज हुआ है जहां पे क्लैरिटी नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ही हुआ है। ठीक है जी, जी मुझे पीटा, पीटने से पता नहीं चल रहा है कि हर्ट ग्रीवियस हर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आपको केवल ऑफेंस की नेचर पता करना है, उसकी सच्चाई जानना नहीं है किसने क्या किया। देन एज टू व्हाट टाइप इन विच सच प्रिलिमिनरी केस इज टू बी इंक्वायर्ड, ये एक लिस्ट है लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं है। विल डिपेंड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। द कैटेगरी ऑफ केसेस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ने हो रहा तो क्या आई जी, अब उसमें हो सकता है उसने जो बताया वो जी मेरे को प्रताड़ित करता है, उसने सेकंड मैरिज की। सेकंड मैरिज तो जो है वो आपका 494 में वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉमर्शियल ऑफेंसेस, कॉमर्शियल ऑफेंस में जो कई बार जो ब्रीच वगैरह होता है वो पनिशेबल भी सॉरी पनिशेबल है, कई बार केवल है सिविल एक्शन ले सकते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस जो एक्सेप्शन 1 पैरा में पड़ा था 106 में,
उसमें बिना थोड़ा सा एलिगेशन जाने हुए डायरेक्ट एफआईआर करना ठीक नहीं है। करप्शन केसेस, करप्शन केसेस में भी आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो। एंड आपका उसके बाद में है केसेस इन विच एबनॉर्मल डिले एटसेट्रा, कि 30 दिन बाद में आप बता रहे हो कि मेरे को चोट लगी, तो इस तरह का केसेस वेयर देर इज एबनॉर्मल डिले इन इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, फॉर एग्जाम्पल 3 month डिले इन रिपोर्टिंग द मैटर विदाउट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनिंग द रीजन। द अफोरसेड आर ओनली इलुस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव, ये केवल इलुस्ट्रेटिव ही इंस्टांसेस है। मेन जर्नल रूल आपका जो है, वो आपका जर्नल रूल क्या है, दैट टू असर्टेन वेदर द इंफॉर्मेशन रिवील कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट। ठीक है। देन उसके बाद में है कि ये इंक्वायरी जो है आपकी कितने दिन तक होगी और ये कैसे रिकॉर्ड करना है। While ensuring and protecting the rights of the accused and the complainant, a preliminary inquiry should be made in a time-bound manner कि within 7 days में this inquiry has to be done. And the fact of delay, अगर कुछ डिले हो जाता है, so that must be reflected in journal diary, जो जर्नल डायरी होती है उसमें आपको लिखना है that why you exceeded from 7 days in making preliminary inquiry. सिंस द जर्नल डायरी, स्टेशन डायरी, ठीक है, या डेली डायरी जिसको रोज नामचा कहते हैं, रोज की चीजें उसमें रिकॉर्ड होती हैं, इज रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिसीव टू द पुलिस स्टेशन, वी डायरेक्ट दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी इंफॉर्मेशन आई वेदर रिजल्टिंग इन एफआईआर, उस पर एफआईआर हुई है या आपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है, उसको मस्ट बी मैंडेटरीली एंड मेटिकुलसली आपको डायरी में जो है वो रिकॉर्ड करना है, जर्नल डायरी, स्टेशन डायरी या डेली डायरी। एंड डिसीजन टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मस्ट बी रिफ्लेक्टेड। इसके साथ ये मैटर डिस्पोज कर दिया। देन पुलिस ने कहा कि भाई 7 days में वी कैन नॉट मेक द इंक्वायरी, ठीक है, बिकॉज हमारे पास अभी जैसे कावड़िया आ रहे हैं तो उनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कई बार और सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करनी है, ऑलरेडी वी हैव वेरी लेस पुलिस फोर्स, सो इट इज़ नॉट complete possible to complete inquiry, preliminary inquiry within 7 days. सो ऐसी सिचुएशन में फिर सुप्रीम कोर्ट का इसी जजमेंट में नेक्स्ट ऑर्डर आया जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड इस ऑर्डर में केवल जो 7th क्लोज था जो हमने अभी पढ़ा है, 7th क्लोज को मॉडिफाई किया है, that while ensuring and protecting the rights of the accused and the complaint, a preliminary inquiry should be made. जो दो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट थे, एक की एफआईआर प्रॉपर नहीं होगी तो विक्टिम के राइट, और एफआईआर अगर बहुत जल्दी हमने अर्जेंसी कर दिया या ऐसे केसेस जहाँ केस भी नहीं बन रहा है तो अक्यूज के राइट। सो ये शुड बी मेड इन टाइम बाउंड मैनर, कि ये बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, बट इट मस्ट नॉट बी एक्सीडिंग 15 days। जो 7 दिन का टाइम था दैट वाज एक्सटेंडेड टू 15 days। एंड एक्सेप्शनल केसेस में सपोज मेडिकल नेग्लिजेंस का है, मेडिकल नेग्लिजेंस में डॉक्टर ने जो है वो जो उसका मेडिकल नेग्लिजेंस है या जजमेंट ऑफ एरर है, जैसे कई बार ड्राइवर का जजमेंट ऑफ एरर है, बिकॉज मेडिकल नेग्लिजेंस या ऐसा जो नेग्लिजेंस जो हमने मर्डर भी जब डिस्कस किया था 304 वाला ए वाला, तो जो नेग्लिजेंस है दैट नेग्लिजेंस हैज टू बी देयर, ठीक है, नेग्लिजेंस नहीं होगा तो वो ऑफेंस नहीं होता है, ठीक है। सो ऐसे केस में सपोज यूएस के डॉक्टर की कोई जो है उस पर ओपिनियन लेनी है, और मे बी सम अदर एक्सेप्शनल केस जिसमें सिचुएशन नहीं हो रही है, सो 15 दिन में नहीं होता तो उसमें बाय एडुकेट रीजन 6 वीक का टाइम प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये जो डिले है 15 days से 6 वीक का, ये क्यों हुआ, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द जर्नल डायरी, दैट बिकॉज ऑफ दीज रीजन दिस थिंग हैज टू बी डन। और अगर पुलिस ऑफिसर जो है एफआईआर में एरर करता है, अगर वो नहीं एफआईआर रजिस्टर करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। So these were the guidelines issued by the Supreme Court, and with this the position is clear that section 154(1) FIR is mandatory, and police officer is duty bound. If he does not disclose, action can be taken.
But suppose there are the cases like corruption cases, matrimonial, in which there is not discloses कि cognizable offense commit हुआ है, preliminary inquiry can be done. उसका scope केवल ये find out करना है कि yes cognizable offense has been committed or not. This preliminary inquiry has to be completed within 15 days. Any information come to the police station for lodging FIR, वो आपको जर्नल डायरी में लिखनी है, चाहे उस पे आपने FIR लिखा हो या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया हो. Okay, so these are the direction, and with this I stop here, because the judgment of the Latika Kumari versus government of UP, and Supreme Court ने डायरेक्ट किया. एंड फाइनली accordingly आप देखोगे कि सभी उन्होंने जो है, ये 12th पैरा 11 12th पैरा देखो. विद अबाउट डायरेक्शन वी डिस्पोज विद रेफरेंस टू मेड लिस्ट ऑफ ऑल मैटर बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच फॉर डिस्पोजल ऑन द मेरिट. ठीक है. अब जो है ये जो जजमेंट है, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट, एंड इट क्लैरिफाई द पोजीशन ऑन द FIR. So I think hope it is clear, Aji.